आईआईटी के बाद दिल्ली का एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है डीटीयू यानी दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी 3 अप्रैल को एक सम्मेलन का आयोजन कर रही है जिसमें सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ-साथ कई निजी संस्थाओं के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसमें संस्थान इन कंपनियों को या निजी और सरकारी क्षेत्रों के संस्थानों को प्रौद्योगिकी के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग को विस्तार देगी। इस बारे में 1 अप्रैल को डीटीयू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सुनिए। Good afternoon to all. This is the first time we are organizing such a meet in this university. On behalf of the university and Vice Chancellor, I am welcoming you all to this meeting. And this time actually this is organized for a specific program, and the program will be introduced by Professor Rajiv Kapoor, Professor of Electronics and Communication. And welcome again to all of you. Actually, especially when we talk about this conference, conferences are generally held. It's quite common, but why this is special? So that's a big question. But before I start, I will let you know that let me give all the kudos for all this effort and the vision to our Vice Chancellor, sir. The idea is the moment he joined, he had a very excellent vision regarding upgrading this and uplifting of the DTU to the highest possible level. And the highest possible level is the world standards, QS rankings, and it should be known worldwide. So that was the question before all of us. And we really loved his first lecture when he addressed the whole institution. And that brought the transformation also. And from there, we started actually thinking regarding whatever experiences we had and whatever we had done till now, why not to put it into a system in such a manner so that this system now uplifts the academic level of the students, plus it puts a big mark on this in the society regarding that DTU now should be known as a institution which serves the society. Have seen that there are so many universities, but all those universities, are they actually for which they are meant for? Are they really able to do it? Do they have any impact on the nearby people, or at least the people of the region? So that's where is the basic intent of the conference. The idea is that taking projects from as such industries or from the government is again not a new thing, but taking a project from a private industry and a very small scale industry, almost 1.63 crores worth of the projects proposals, plus expression of interest from almost 8 industries, which is in the queue. So it means there are large number of industries, societies, even including NDMC is also ready to give us the project, and many other small Delhi Jal Board and many other they are also coming and going to give us the project. So this is how we are going to serve Delhi and the nearby region in true sense. Thank you, Professor Kapoor, and thank you, Professor Indu. So first of all, I would like to welcome all the media persons and people from the media and from various channels and both media, electronic and print media. And as you know, Professor Kapoor has already mentioned about what the purpose of this conference is. In fact, this is something which you would realize that especially an institution like Delhi Technological University, which has created its own legacy in terms of providing quality education in terms of engineering and technology. Unless and until, usually what happens is the students that we train, they go in various industry, contribute in the normal industrial processes, and obviously, and in certain cases, they do their masters in management or, completely change over from whatever they have studied in engineering, or it's altogether a different domain of managing. Similarly, few students, they go to civil services, so that is also a way of serving the society. But the idea was basically how the primary
training that the institution imparts, which is the technology engineering education, how that can be utilized to solve the societal problem. We felt that unless and until we as an institution are able to harness the potential and the energy and the enthusiasm of the one of the best brains that the institution is able to attract and channelize their energies to identify, first of all, identify the societal problems and utilize their engineering skills which they have acquired over a period of time and contribute to providing solutions to the societal problems in various domains of engineering that basically the institution has excelled. The idea was to have, identify problems and the challenges both in the urban and rural domain and convert those problems into, say, BTech projects or MTech projects and, or minor projects depending on the magnitude, enormity of the problem. And then, in the guidance and supervision of, teachers, supervisors, the students actually work towards, those problems through the technological intervention. And then, collaborate with industry in order to scale it up so that it becomes, and also with the relevant ministries and the executing bodies, urban local bodies, panchayats, and so that, the interventions can be these innovations. So that is what basically, likewise, there are several areas which can be identified and on which, we can actually work. So many researches are going on. And similarly, in mechanical engineering department, we have automobile, biodiesel, work on lubricants, like that. And in management side also, there are a lot of work going on in economics, data analytics, and entrepreneurship. So we will be meeting you at least once in a month, so that one cluster, the research component can be discussed, so that it can reach out the society. प्रयास ये है, जो कॉन्फ्रेंस के कॉन्टेक्स्ट में प्रयास ये है, कोई भी अगर आप प्रॉब्लम या इशू लेते हैं उसमें खाली साइंटिफिक सोल्यूशन तक सीमित नहीं रहता है, उसमें सोशल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, लीगल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स भी होते हैं, हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी होते हैं. तो प्रयास ये किया गया है कि ऐसा जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जाए, जिससे कि सिर्फ एक वन डायमेंशनल सोल्यूशन ना मिले, उसका कॉम्प्रिहेंसिव हम सोल्यूशन बताएं जो कि ओवरऑल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. हाँ, मैं प्रदीप कुमार मलयालम नवादा से. तो ये जो बच्चे डेवलप करेंगे सॉल्यूशंस, क्या वो स्टार्टअप होंगे छोटे छोटे? आप बताइए. ये जो मॉडल है, हाँ. ये हमने जो थोड़ा हट के बनाया है. जैसे होता क्या है कि एक स्टार्टअप जो होता है ना, उसमें क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो अपने आप नॉलेज एक्वायर करके किसी मेंटर रख के उसको कुछ बना रहे हैं. अब होता क्या है कि आप देखो कि जो टेक्निकल जो स्टार्टअप्स होते हैं, अब देखिए इंडिया में नहीं बन रहे, बहुत कम हैं टेक्निकल स्टार्टअप्स. अगर कुछ हैं तो वो फॉरेन कोलैबोरेशन से चलते हैं, तो कोई इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन नहीं हुआ. तो आप देखेंगे शार्क टैंक में भी वो स्टार्टअप दूसरे तरह के हैं जो कि और तरह से रिलेटेड हैं. टेक्निकल स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए हमें एक्सपर्ट्स, प्रोफेसर्स, ये सबको मिलना पड़ेगा. इवन जो आउटसाइड इंडिया के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी ग्रुप में लगाया गया है. तो मेरे पास न्यूज़लेटर है, मैं ऑलरेडी शेयर किया है, उसमें सारे तरह के लोग, तो हर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लेके चला गया है. तो हर कोई हर चीज़ को नहीं कर सकता है, बट मिलके हम उसको कर सकते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे. इंस्ट्रूमेंट्स डिज़ाइन करने के ऑर्डर्स मिले हैं. इंडियन कंपनी है इंडिकेशन इंस्ट्रूमेंट्स फरीदाबाद की, उन्होंने 25 लाख आई थिंक 25 लाख उन्होंने दिए हैं इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करने के लिए. और वो एक इंस्ट्रूमेंट जो है हमारी लाखों करोड़ों की इंपोर्ट्स को रोकेगा, बचाएगा. तो एडिशनली ये थिंकिंग हो गई, और साथ में जो बच्चे हैं वो डिज़ाइन करना सीखेंगे. नहीं तो डिज़ाइन जो होता है वो लैब तक नहीं पहुंचता है, तो हम उसको लैब तक पहुंचाएंगे, और जो वो पैसा देंगे कंपनी वाले वो बच्चों तक पहुंचेगा. जी सर, कोई ऐसा स्पेसिफिक फील्ड जिसके साथ ज़्यादा क्लोजली काम किया है अभी तक, इस तरह के इनोवेशन का जो प्रोसेस है जो आप कर रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर एग्रीकल्चर को ले लें या साथ में दिल्ली पोल्यूशन की बात कर लें, तो दिल्ली पोल्यूशन एक बड़ा इशू दिल्ली में बनता है और पराली उसका एक बड़ा कारण होता है. तो उसका जो वेस्ट है उसको मैनेज करने के लिए जो सरकार के एफर्ट्स हैं, क्या उस दिशा में भी कुछ काम किए गए हैं?
या करने की प्लानिंग है फ्यूचर में? मैं एयर के बारे में तो मैं स्ट्रेट अवे बताता हूँ क्योंकि मेरा एरिया ये एयर है। सरकारी सब चीज़ में है। तो इसमें तो अभी यहाँ पे कुछ काम हो रहे हैं, जी, लेकिन जो अगर आप जो देखा जाए कि बहुत इलैबोरेट तरीके से, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से काम किया जाए, जी, ऐसे काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। केवल हमको नहीं, इवन आईआईटी दिल्ली मान लीजिए जो अभी है, वहाँ पर भी उस तरह से जो एक एयर पोल्यूशन की दिल्ली की समस्या है जैसे, उसका कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन अगर हम देखें तो उसको इंटीग्रेटेड मैनर में हमको उसका को करने की आवश्यकता है। जी, और उसमें ख़ास तौर पे जैसे मैं इस पे और थोड़ा सा एक बात बताऊंगा, जैसे क्या है कि आप समस्या केवल ख़ास तौर पे एयर के कॉन्टेक्स्ट में जब आते हैं तो एक दिल्ली की समस्या केवल नहीं रहती है वो। जी, जी, जैसे पानी का हम कॉन्सेप्ट जैसे वाटर शेड होता है, तो वाटर शेड इज़ नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन, सिटी, एग्जैक्टली, तो वो आपकी मल्टीपल स्टेट्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसी जो एयर की अगर हम जैसे पार्टिकुलेट मैटर की दिल्ली की बात करें हम, तो अगर हम मान लीजिए सारे सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन दिल्ली के निकाल भी दें, तब भी आप देखेंगे यहाँ पे पोल्यूशन लेवल्स रहेंगे, क्योंकि जो जैसे पराली का उदाहरण दिया आपने, ऐसी जो सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन है वो उनका खाली लोकलाइज नहीं है, वो ट्रांसबाउंड्री ट्रांसपोर्ट भी पोल्यूशन का होता है। तो इसीलिए जो है इसमें हमारा कुछ ऐसा कुछ विचार हमारा है कि हम ऐसे जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर के कॉम्प्रिहेंसिव कुछ हम करें एयर के एरिया में। जी, सर्टेनली इसमें एक जो है। जी, और जहाँ तक एग्रीकल्चर की बात है, ये इनफैक्ट जो स्मार्ट एग्रीकल्चर ड्रोन एप्लीकेशन, आई थिंक प्रोफेसर इंदू इज इन्वॉल्व्ड इन, सो हाउ ड्रोन्स कैन बी डिप्लॉयड फॉर आप थोड़ा बताएंगे तो बेहतर। Actually, drones can go there and visualize the situation, and from there we will be able to, like from the video itself we may be able to relate the moisture content, and maybe if there is any fault in the fruit or in the leaf, all these things can be identified and accordingly solutions can be done. Small work has been already done in this by the students and it is published also, but anyway it has to be converted into the Collaboration. into final product, and it has to be एग्जीक्यूशन है, okay. education. जी। So it is, we are doing it, like maybe of identifying whether the fruit is really Healthy or not. healthy to harvest. The time of harvest can also be identified. Such kind of work is going. एग्रीकल्चर में, डिफेंस में, माइनिंग में, डिज़ास्टर में इस टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। अवश्य। और ख़ास तौर पे जहाँ पे, और वो कुछ इनिशियल एफर्ट्स हुए हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो बैठे हैं उसी टेक्नोलॉजी के पे उन्होंने यूज़ करके उस पर कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड किए। ये जो कोलैबोरेशन का प्रोसेस है, ये शुरू कब से किया है DTU, और अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है कि हम सही दिशा में सोसाइटी के लिए जो आपका मोटिव है, सोसाइटी को जो प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो मोटिव सक्सेस रहा है, कैसा रहा है अब तक का जर्नी जो कोलैबोरेशन? तक जो है हम लेबोरेटरी लेवल पे इंडिविजुअल्स, देयर वर सो मेनी प्रोफेसर्स, आई वाज आल्सो डूइंग, बाकी लोग भी कर रहे थे, तो हमने उसमें रहते हो, बट सर के आने से क्या है, पूरा ये अब सारा एक मुहिम की तरह बन गया है, ये एक, ठीक है ना। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आज मैं आपके सामने एक DTU की तरफ से बैठा हूँ, पहले मैं एक लेबोरेटरी को रिप्रेजेंट करता था, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, और ये आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा एक चेंज लाने वाली है। और सर डॉक्टर कोई एग्जांपल हो? एग्जांपल बता रहा हूँ। क्योंकि हाँ, प्रोजेक्ट का example. एग्जांपल मैंने, जैसे हमने लिया था प्रोडक्ट, एक तो हमने पहले एरिक्सन के लिए उन्हें हमें दिया था, एक माइक्रोवेव फिल्टर्स होते हैं, माइक्रोवेव फिल्टर्स को ट्यून करना बहुत मुश्किल होता है, और उसमें ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो 12th पास होते हैं, यूरोप या एनीवेयर, क्योंकि उसमें स्क्रू ड्राइवर से करना होता है, लेकिन कौन सा स्क्रू पहले करना है, देयर आर 80-90 स्क्रूज, तो सामने उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखना होता है, लेकिन वो पता नहीं लगता है, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो देन कंपनी टोल्ड मी कि भाई ये इसको कैसे करना है, इसका कोई फास्टर तरीका हो सकता है या कोई सेट तरीका हो सकता है, तो हमने एक ऑटोमेटेड रोबोटिक सिस्टम डिज़ाइन किया, तो उसमें हमने एक PhD भी साथ में लगाया था, एंड देन वो सिस्टम पूरी तरह से वर्किंग है, और उसको हम कमर्शलाइजेशन के लिए TRL 9 लेवल पे वो ऑलरेडी है, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि कीसाइट इज़ ए बिग कंपनी, ठीक है ना, जो इंस्ट्रूमेंटेशन की कंपनी है, उनके जो
जो मेन जो डीलर है ना, एजिलेंट नहीं, तो वो अग्रवाल साहब हैं, तो उनसे मेरी बात चल रही है कमर्शलाइजेशन के लिए, क्योंकि वो क्या करते हैं कि अपने एक सिस्टम के साथ VNA वो सेल करते हैं, साथ में ये सिस्टम एक प्रैक्टिकल्स के रूप में लेबोरेटरी में ये सप्लाई किया जा सके, तो इसकी मेरी बात चल रही है। तो ये हमारा एक हमने डेंटल अल्ट्रासाउंड बनाया है, ये मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के साथ। तो एक्चुअली दांतों का कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, आपको पता है, पर डॉक्टर्स ने बोला मुझे, डॉक्टर संगीता तलवार वहाँ के एक्स प्रिंसिपल हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें रूट कैनालिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि एक बार अगर वो इंस्ट्रूमेंट टूट गया रूट कैनाल में तो या तो वो दांत ही निकालना पड़ेगा, अगर वो नहीं निकलना, और अगर कोई किस्मत ही अच्छी हुई तो वो निकल आएगा किसी का। तो फिर वो कहते हैं कि एक्सरे तो हम कर नहीं सकते क्योंकि वो हार्मफुल है। तो फिर हमने NIR इमेजिंग का सोचा पहले। NIR इमेजिंग जो है उसकी फ्रिक्वेंसी इससे हायर होती है अल्ट्रासोनिक से, लेकिन जितनी फ्रिक्वेंसी हायर होगी उतना ही कॉस्टली सिस्टम होगा। फिर वो कहते हैं कि नहीं, ये तो हमें तो दान में भी देना हो सकता है कि भाई हाँ, गाँव में सारे गाँव में इंस्टॉल कर दो। तो ऐसा कोई सिस्टम सोचा जाए कि जो कि हार्मफुल ना हो इन द फ्यूचर ऑल्सो। तो अल्ट्रासोनिक्स जो हैं वो उन्होंने कहा कि ये सूदिंग इफेक्ट देते हैं हमारी बॉडी को। तो फिर हमने अल्ट्रासोनिक्स में फिर हमने एक नया सेंसर, क्योंकि उनका सेंसर जो होता है जो हमारा एब्डोमेन पे लगता है, तो उसमें वो जेल लगाते हैं और जेल लगा के और उसको करते हैं, बट वो सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए होता है। अब ये तो टिश्यूज़, ये तो हार्ड है, तो बोन या फिर टूथ में कैसे सिग्नल जाएगा, तो ये हमारे लिए बड़ी एक समस्या थी। फिर हमने मटेरियल साइंसेस, हालांकि मैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स से था, फिर मटेरियल साइंसेस के भी पेपर्स पढ़ के एंड देन वी फाउंड ए मटेरियल जिसमें हमने उसको उसको डुबोया, और जो सेंसर्स थे, सेंसर्स हमने कुछ सेंसर्स हमने यहाँ पे बॉर्डर से ये लिए हैं, जो ये दिल्ली और जो सोनीपत का बॉर्डर है, कुंडली बॉर्डर से लिए हैं, और कुछ हमने 20 मेगाहर्ट्ज तक के जो सेंसर्स थे वो बाहर से, वो इंडिया में नहीं बनते हैं। तो हमने तो इवन ये सोचा था कि हाँ, वो सेंसर्स भी यहाँ क्रिएट करने की वो बना देंगे। तो इस तरह से वो एक हमारी मेडिकल फील्ड की तरफ चला जाएगा, और उसी से रिलेटेड हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स और बनाने के लिए मौलाना आज़ाद ने अभी हमने इसी कॉन्फ्रेंस में अलॉट भी कर दिया, उन्होंने हमें पहले ऑर्डर दे दिया। तो 39 पॉइंट समथिंग लाख्स का है, तो उनके 2 ऑर्डर्स हैं, तो वो हमें ऑलरेडी मिल गए हैं। तो एक है कमर्शलाइजेशन, इसका जो डेंटल अल्ट्रासाउंड बनाया गया है ये TRL 7 लेवल पे, अब इसको TRL 9 लेवल और 11 लेवल तक ले जाना है ताकि कमर्शलाइजेशन मार्केट में आ जाए। तो इसमें हमारे साथ एक डॉक्टर शाहिद हैं जो IIT दिल्ली से हैं, तो वो अब सेंसर जैसे 148 सेंसर्स का एक सेंसर बनाना था। अब मेरे पास तो लैब की फैसिलिटी नहीं है, मैं तो उसको 10 तक बना पाया था। तो 148 सेंसर्स होते हैं जो हमारा ये अल्ट्रासाउंड का सेंसर होता है। अब उसके लिए IIT में फैसिलिटी थी, तो अब वो उसको वहाँ पर बनाकर हमें सेंसर पार्ट हमें देंगे, और हम सिस्टम बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का, और वो दोनों मर्ज करके हम इसको डिलीवर करेंगे, कोशिश करेंगे इसको जितनी जल्दी हो सका विल ट्राई। तो इस तरह के कई प्रोडक्ट्स हैं, जैसे EV के ऊपर हैं, कुछ और मेरे पेटेंट्स हैं, जो 6 पेटेंट्स हैं उनको मैं मटीरियलाइज आगे कर रहा हूँ, उनको इस तरह से भी और भी सारे मिलके करेंगे। और मैंने और सबको भी मिला लिया कि जो भी चाहे, हमारा जो मल्टी डिसिप्लिनरी काम है तो मिल के करना हमेशा ही बेटर रहता है। एक और हम लोगों ने एक मोटर कंट्रोलर फॉर लो एंड मीडियम पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एक्चुअली ई-रिक्शा के लिए एक मोटर कंट्रोलर हमने बनाया है, विच इज़ ऑफ लोअर कॉस्ट दैन विच इज़ एक्चुअली इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना। सो एक्चुअली लिथियम एक कंपनी है, लिथियम बैटरीज, वो बैटरी स्वैपिंग वो करते हैं। वी हैव गिवन इट टू देम, एक्चुअली दे वर ऑल्सो आवर पार्टनर फॉर मेकिंग इट, सो that is already done, like for e-rickshaw, for 1 kilowatt e-rickshaw, we have made. थैंक यू सो मच, Thank you बहुत बहुत so much. आभार।